देख रहे हैं TV9 और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल गेस्ट प्रतीक गांधी। प्रतीक, स्वागत है आपका TV9 में। बहुत बहुत शुक्रिया। સ્પેશિયલી વાત કરીએ ગુજરાતી વાનગીઓની, જો આપણે વાત કરીએ તો કઈ છે તમારી ફેવરેટ વાનગીઓ, અને સ્પેશિયલી સેટમાં શૂટિંગ વખતે તમે પ્રેફર કરતા હો એવું કંઈ ખાવાનું કે લઈ જતા હો સેટના બધા લોકો માટે, ટીમ મેમ્બર્સ માટે? એમ તો હું ઘરેથી મારું ટિફિન તો હું ઘરેથી જ લઈને જાઉં છું. ઘણી બધી વાર એવું થાય કે એવી કોઈક વસ્તુ બની હોય કે જેમાં બધાને મજા આવશે તો એ બધા ઘણા બધા માટે લઈ જતા હોય. સેટ પર સ્ટાન્ડર્ડ ખાવાનું તો અમારું ઘરનું જ જનરલી જમવાનું આવતું હતું. પણ ગુજરાતી વાનગીઓની વાત કરીએ તો હું સુરતથી છું, અને સુરતનું જમણ તો આમે વખણાય છે. એટલે મને દરેક ગુજરાતી વાનગીઓ એટલી જ ભાવે છે. ખમણ, ઢોકળા, સમોસા, બધી જ વસ્તુ. પણ હું બધું જ બહુ મોડરેશનમાં થોડું થોડું ખાઉં, એટલે મને વાંધો ના આવે, એટલે હું બધું ખાઈ શકું. પણ એમ પણ તમારું વજન તો જલ્દી વધતું નથી, સો યુ નીડ નોટ વરી અબાઉટ ધેટ. પણ હવે ખબર નથી, એકવાર જે શરીરને ખબર પડી ગઈ છે કે વજન કઈ રીતે વધે, એટલે હવે ખબર નહીં શું કરશે. becomes risky. આઈ નો. તો સ્પેશિયલી વાત કરીએ સ્કેમના સેટ પર એવું કંઈ થતું હતું કે તમે ગુજરાતી ડિશિસ લઈ જતા હતા, બધા લોકો, ટીમ મેમ્બર્સ બધા એન્જોય કરતા હતા? અરે બહુ મજા આવતી હતી સ્કેમના સેટ પર. એક તો હંસલ સર પોતે છે ને, હી ઇઝ અ વેરી ગુડ કુક. એટલે એ પોતે નવી નવી વાનગીઓ બનાવીને કેટલી બધી વાર લઈ આવતો હતો અમારા બધા માટે. અને અમે લોકો બધા, પછી મેં ટિફિન લઈ જવાનું શરૂ કર્યું, પછી હંસલ સર ને ત્યાંથી એમનું ટિફિન આવતું હતું, પછી હેમંતભાઈ પણ ટિફિન લઈને આવે, અમે બધા ભેગા થઈએ. એટલે લંચ ટાઈમ એવો હતો તો દર વખતે સેટ પર કે સૌથી વધારે મજા જ લંચ પર આવતી હતી. એટલી બધી જુદી જુદી વાનગીઓ અને બધું આરામથી લંચ ચાલતું હોય. તો હાલ તો કેરીની સીઝન છે, તમને કેરીમાં કઈ કેરી પસંદ છે, હાફૂસ કે કેસર? બધી જ, દરેક પ્રકારની કેરી મને ભાવે. રેની સીઝન કઈ રીતે એન્જોય કરી રહ્યા છો તમે? ઓલ્ધો લોકડાઉન હમણાં તો આમે લોકડાઉન છે, ઘરમાં છીએ, પણ કેરી ને બધું મળી રહે છે અહીંયા, તો રોજ રસ ખાઉં છું. મુંબઈના વડાપાઉં નથી ખાતા ઘણા વખતથી વડાપાઉં નથી ખાતા. ફિટનેસ કોન્શિયસ? હા, એટલે પણ જો કે થિયેટરના દિવસે મને યાદ છે કે થિયેટર એટલે વડાપાઉં ને ચા. કટિંગ ચાય એ મુંબઈની. અમારું, હા, મુંબઈની કટિંગ ચાય અને વડાપાઉં એ અમારું સ્ટેપલ ડાયટ હતું થિયેટરનું. રાઈટ. તો સ્પેશિયલી વાત કરીએ આવનારી તમારી ફિલ્મો, તો તમે કીધું રાવણ લીલા છે, અતિથિ ભૂતભવ છે, ત્યારબાદ કોઈ એવી ફિલ્મ કે કોઈ એવા ડિરેક્ટર કે એક્ટર જેની સાથે કામ કરવા માટે તમે ઈચ્છી રહ્યા છો બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? ઘણા બધા છે. હજી તો મેં માત્ર શરૂઆત કરી છે. ઘણા બધા છે. મણિરત્નમ સર છે, ઝોયા અખ્તર છે, અનુરાગ બાસુ છે, અનુરાગ કશ્યપ છે. બહુ બધા એવા ડિરેક્ટર છે જેમની સાથે કામ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. એક્ટ્રેસમાં વાત કરીએ તો એક્ટ્રેસમાં ડેફિનેટલી અનએન્ડિંગ લિસ્ટ છે. ન્યૂ કમર્સની બી વાત કરીએ કે ઘણી એવી એક્ટ્રેસીસ છે. તમને સ્પેશિયલી કઈ એક્ટ્રેસથી તમે વધારે ઇમ્પ્રેસ છો? કોંકણા સેન શર્મા, વિદ્યા બાલન, તાપસી પન્નુ, આલિયા ભટ્ટ, આ બધા they've done brilliant work. તમે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સ પર કેટલો સમય પસાર કરતા હો છો? બિંજ વોચ કરો છો તમે પોતે? હું બિંજ વોચ નથી કરી શકતો, પણ હા, હું ઘણી બધી વસ્તુ મારી જોવાની જે પેન્ડિંગ હોય છે ટુકડામાં જોતો રહું છું. પણ દિવસમાં લગભગ 1.5 કલાક જેવું કંઈક જોઈ શકાય. ઓટીટી પ્લેટફોર્મ્સનું ફ્યુચર તમે કઈ રીતે જોવો છો? કારણ કે હાલ જે સમયગાળો ચાલી રહ્યો છે, લોકડાઉન છે, કોરોના છે, આવા સમયમાં ઘણી મોટી ફિલ્મો થિયેટર્સમાં રિલીઝ ન થઈને ઓટીટી પર તેમને રિલીઝ કરવાનો વારો આવ્યો. તો શું લાગે છે તમને, ખાસ કરીને ન્યૂ કમર્સની વાત કરીએ કે નવા ટેલેન્ટ્સની વાત કરીએ, જેઓને મેઇન સ્ટ્રીમ હિન્દી ફિલ્મોમાં ચાન્સ નહોતો મળી રહ્યો, તેઓને આજે એક આ મોટું પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. હાઉ ડુ યુ સી ધીસ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ એઝ? ઇટ્સ અ બિગ રિવોલ્યુશન. એક બહુ જ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીનું આખું ચક્કર 360 ડિગ્રી ફરી ગયું છે આના લીધે. મારા જેવા એવા કેટલા બધા એક્ટર્સ છે કે જેને આને લીધે એક મોકો મળ્યો છે, જે લોકો સુધી પહોંચી શક્યા છે. અને હવે ઓટીટી ને લીધે આખી વસ્તુ એવી થઈ છે કે એવરીથિંગ ઇઝ ડ્રિવન બાય ધ સ્ક્રિપ્ટ.
આખી વાત જ કન્ટેન્ટની થઈ ગઈ છે. એટલે કન્ટેન્ટ ઇઝ કિંગ નાઉ. સો કોલ્ડ ડેફિનેશન ઓફ હીરો ઓલ્સો ચેન્જ્ડ. આપણે જે મગજમાં પહેલેથી આપણા મગજમાં જે હતું કે હીરો એટલે આવા જ હોય, હિરોઈન્સ આવા જ હોય, આ જ પ્રકારના કેરેક્ટર, હવે બધું પ્રોટેગનિસ્ટ થી એટલે આખી ડેફિનેશન જ બદલાઈ ગઈ. હવે હીરો નથી કહેતા લોકો, પ્રોટેગનિસ્ટ કહે છે, કે જે સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર કે જે આખી વાર્તાને આગળ લઈ જઈ રહી છે, કે જે ને એટલા બધા એવેન્યુઝ ખુલી ગયા છે. ઘણી બધી ફિલ્મો પણ આના પર રિલીઝ થઈ. એનું સૌથી મોટું કારણ પણ એ છે કે ઓટીટીની રીચ પણ બહુ ડીપ થઈ ગઈ છે. લગભગ ગામે ગામ દરેક જગ્યાએ લોકો પાસે ઓટીટી અવેલેબલ છે. એ લોકો પોતાના મોબાઈલમાં પણ જોઈ શકે છે. એટલે આપણી પાસે નવું ઓડિયન્સ બેઝ આખું ખુલી ગયું છે. કોઈ સ્પેસિફિક રોલ જે તમે કરવા માંગતા હો? કારણ કે ઘણી વખત જોવાયું છે કે એક જ ટાઈપના રોલ્સ મળતા હોય છે, તો કોઈ એવા એકદમ ડિફરન્ટ રોલ જે તમે કરવા માંગતા હો, એવું કોઈ એક્સપેક્ટેશન તમારી? મેં કહ્યું એમ કે હજી તો મેં શરૂઆત કરી છે, એટલે હજી ઘણા બધા જોનર એક્સપ્લોર કરવાના બાકી છે, ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ એક્સપ્લોર કરવાના બાકી છે. સો પછી એ કોમેડી હોય કે થ્રિલર હોય કે એક્શન હોય, રોમેન્ટિક હોય, આ બધા જ પ્રકારના કેરેક્ટર્સ અને જોનર મારે એક્સપ્લોર કરવા છે. વેલ, હમણાં મુંબઈમાં જે રીતે ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે છેલ્લા સોમવારથી, તમે આ વેધર પોતે કેટલું એન્જોય કરો છો? તમે આટલા વર્ષોથી મુંબઈમાં છો. શરૂઆતમાં ગમે છે અને પછી ડેફિનેટલી ટ્રાવેલિંગ ને બધા લોકો ફેડઅપ થઈ જાય છે રેની સિઝનથી, બટ શરૂઆત છે હાલ, તો તમે કઈ રીતે એન્જોય કરો છો? જો કે ઘરમાં છો, બટ હાઉ ડુ યુ સ્પેન્ડ યોર ડે, રેની ડે? રેની ડે ઇઝ, જો વરસાદને આનંદ માણવો હોય વરસાદનો, તો એક ગરમ આદુવાળી ચા અને ભજીયા, બે જ વસ્તુ એવી છે જેનાથી મજા આવી. બીજું કંઈ જ જોઈતું નથી. મ્યુઝિક તમે કયા ગીતો સાંભળો? મ્યુઝિકની વાત કરીએ. મ્યુઝિકમાં મારો એવું કોઈ પર્ટિક્યુલર જોનર નથી, બટ મને છે ને તે જુદા જુદા પ્રકારનું, જુદા જુદા દેશનું, જુદા પ્રાંતોનું મ્યુઝિક સાંભળવાની બહુ જ મજા આવે છે. એટલે હું એ પ્રકારનું મ્યુઝિક વધારે સાંભળતો હોઉં છું. જેમ કે કોક સ્ટુડિયો આખી જે સિઝન છે બધી જ, દેટ્સ માય ફેવરેટ. એમાં એ આ જે ફ્લેવર છે, મને ફ્યુઝન ફ્લેવર મને વધારે ગમે છે, ક્લાસિકલ વધારે ગમે છે. વરસાદના ગીતોની વાત કરીએ તો કયા ગીતો છે જે તમારા સૌથી ફેવરેટ છે? ગુજરાતી વરસાદમાં છે ને, જો હું હિન્દીમાં એક સ્કૂલમાં તો ત્યારથી એ સાંભળ્યું છે, એટલે પિયા બસંતી જે છે એ મારા માટે વરસાદ છે. એટલે વરસાદ જેવો આવે ને, ચોમાસું જેવું આવે ને, એટલે એ જ મ્યુઝિક, એ જ સાઉન્ડ, એ જ લિરિક્સ સીધા મગજમાં આવે, ગૂંજવાનું શરૂ થઈ જાય, ગૂંજતું રહે. હા. એના લિરિક્સ. મુંબઈમાં જે સોંગ ફિલ્માવવામાં આવ્યું હતું અમિતાભ બચ્ચન ને જયા બચ્ચન ઉપર, રીમઝીમ ગિરે સાવન, ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. સો તમારી કોઈ એવી યાદો છે મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ પર હાઈ ટાઈડ જ્યારે હોય ત્યારે એની મજા માણવા, એન્જોય કરવા ગયા હો, એવી કોઈ યાદો? ઘણી યાદો છે. એવી તો ઘણી બધી યાદો છે મુંબઈમાં, બેન્ડ સ્ટેન્ડ પર કે મરીન ડ્રાઈવ પર. ઘણી બધી વાર તો એવું થતું હતું કે આ સિઝનમાં જેવા શોઝ પતાવીને અમે બહાર નીકળીએ મરીન ડ્રાઈવ પર, ત્યાં એનસીપીએ ઓડિટોરિયમમાં શો હોય ને, ત્યારે શો પછી ત્યાં બેસી રહેવાની બહુ મજા આવે. રાઈટ. લોંગ બેક. હવે તો તમે પબ્લિકલી ડેફિનેટલી એવી રીતે નહીં ફરી શકો. હમણાં તો એવો માહોલ પણ નથી, જોકે. ના, બટ ફેન ફોલોઈંગ તમારી ખૂબ વધી ગઈ છે, સો એટલે હવે જ્યાં પણ જઈએ થોડું સંભાળીને, લોકોને તકલીફ ન પડે એવી રીતે જવું પડે. ટ્રુ. સોશિયલ મીડિયા પર તમને કેવા રિસ્પોન્સ મળી રહ્યા છે? તમારી ફેન ફોલોઈંગ ખૂબ વધી ગઈ છે, સો કઈ રીતે? બહુ જ પ્રેમ મળી રહ્યો છે મને સોશિયલ મીડિયા પર પણ. જનરલી પણ જ્યારે લોકો મળે ત્યારે કશે શૂટ કરવા ગયા હોય, કશે શો માટે ગયા હોય, એટલે હું મારી જાતને બહુ લકી માનું છું કે આ પ્રકારનો પ્રેમ મળવો લોકો, અને જ્યારે લોકો તમારી सक्सेसમાં લોકો પોતે खुश થતા હોય ને પોતે જોડાઈ જાય, તો આનાથી મોટું કંઈ જ ન હોય. सबसे पहले तो ये बताइए, आपका नाम लेते ही सब बोलने लगते हैं स्कैम. नेशनली इतना आपको रिकॉग्निशन मिला. साल 2020 की बात करें तो लोगों के लिए बहुत ही टफ था, लेकिन इसी साल ने आपको काफी नाम कमा के दिया है, आपके टैलेंट ने. क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल साल था ये. मेरे करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मुझे मिला स्कैम में. स्कैम रिलीज हुई लास्ट ईयर, और उसके बाद
दुनिया सच में बदल गई मेरे लिए। मेरे आजू बाजू बहुत कुछ बदल गया है। अ, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छी ऑफर्स आ रही हैं, देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड राइट नाउ। द बिग बुल अभी आई है हाल ही में, अभिषेक बच्चन की। उनसे जब मैंने बातचीत की थी तो उनसे भी मैंने पूछा कि आपकी फिल्म, आपकी वेब सीरीज उन्होंने देखी स्कैम 1992, और आपकी भी काफी तारीफ की। इनफैक्ट हर कोई बिग बुल के लिए उनसे सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट सारे जर्नलिस्ट भी उनसे ये बात पूछ रहे थे कि प्रतीक गांधी का परफॉर्मेंस कैसा लगा, और स्कैम 1992 उन्होंने देखी है नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है। तो एट टाइम एक ऐसा समय आया जब वो बहुत ऊब चुके थे इस तरह के सवाल से, बट जब मुझसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और कंपैरिजन की जहां तक बात आती है और उनकी तरफ से जिस तरह के रिएक्शंस आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जहां तक कंपैरिजन की बात है तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि दो इंसानों को कंपेयर किया जा सकता है। और क्योंकि एक्टर्स हम दो अलग व्यक्तित्व हैं, हम लोग दो अलग इंसान हैं, तो वो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम कोई अगर प्रोडक्ट होते हैं तो शायद कंपैरिजन कर भी लेते हैं। जिस इमोशन को जैसे मैं सोचता हूँ शायद और कोई नहीं सोचता होगा, और जैसे और कोई सोचता है मैं नहीं सोचता हूँ। तो ये कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक अभिषेक बच्चन की बात है तो यार मैंने तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। तो उसका, उनका और मेरा और वैसे कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं। कंपैरिजन मेरे ख्याल से इसलिए शुरू हुआ यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर था। भले ये वेब जी जी जी, शायद उसी की वजह से। फिल्म थी, लेकिन जिस तरह से ऑडियंस को कहानी जो है वो सर्व की गई, पिरोसी गई, उसके जी बाद अभी भी लोग सोशल मीडिया पर यही कहते हैं, आपके फैंस हो या उनके फैंस हो, कि आपकी जो वेब सीरीज है या आपकी जिस तरह से कहानी प्रस्तुत की गई और आपने अपने किरदार के साथ जिस तरह से अ, अ, अभिनय आपने किया, दैट इज par excellence. जी। जहां तक फिल्म की बात है या वेब सीरीज की बात है ना, तो परफॉर्मेंस एक चीज है, उसके बाद भी इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसपे शायद बियॉन्ड अ पॉइंट एक्ट्रेस का कोई कंट्रोल होता भी नहीं। तो ये इतने सारे वेरिएबल्स के साथ काम करना, इतना ये बहुत ही, मतलब इट्स एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट खड़ा करते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आपने कहा वो सही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिमिलर था, लोगों के दिमाग में एक कंपैरिजन भी उठी थी, और इसीलिए शायद लोगों ने वो, और स्कैम अभी अभी भी बहुत ताजा था लोगों के दिमाग में। तो जाहिर सी बात है कि जैसे उसके बाद बिग बुल आया, भले तो कुछ महीनों बाद आया, पर स्कैम इतना ताजा था दिमाग में लोगों के कि वो उसके साथ कंपैरिजन लोगों ने कर ही दी शायद। सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा आपका? स्कैम रिलीज हुई इसके बाद आपको फ्रेंड्स, फैमिली, बॉलीवुड इंडस्ट्री से, गुजराती इंडस्ट्री से जिस तरह से रिएक्शंस मिल रहे थे, सबसे यादगार ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया हो? बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। सबसे यादगार जब शबाना जी ने और जावेद जी ने फोन करके मुझे बताया था कि इन्हें बेहद पसंद आया। जावेद साहब ने बोला था ये कहा मुझे फोन पे कि कुछ 20-25 सालों बाद उन्होंने इस प्रकार की कोई परफॉर्मेंस देखी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। आप एक गुजराती हैं, इसीलिए आपको लगता है कि आप कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाए पूरी तरह से, और जी, लोग मैं गुजराती पा हूँ। रहे थे क्योंकि कैरेक्टर भी जी गुजराती था? जी, तो मुझे लगा है मेरा गुजराती होना जरूर मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा इस किरदार को निभाने में, और इस स्टोरी में भी कुछ ऐड करने की। बिकॉज हर्षद मेहता वो गुजराती थे, और गुजराती मेलू था पूरा उनका वर्ल्ड जो था, शेयर मार्केट की पूरी जो दुनिया थी उसमें गुजराती और मारवाड़ी पहले से ज्यादा इन्वॉल्व भी रहे हैं। तो मेरा गुजराती होना काम तो कर गया है मेरे लिए। जब इसकी शुरुआत हुई फिल्म की, वेब सीरीज की शूटिंग की, कभी आपने सोचा था कि इतना ज्यादा इसे लोग पसंद करेंगे? ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा, और मतलब ऐसा शो बन जाएगा कि जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी, देश और दुनिया में भी होगी, और इस प्रकार के रेटिंग्स मिलेंगे, इस प्रकार का प्यार मिलेगा।
हमें सिर्फ एक चीज हमारे सबके दिमाग में थी, एक बात थी हमारे दिमाग में जब हम ये इसको शूट कर रहे थे, कि हम एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिससे हम फ्यूचर में हम खुश रह पाएंगे, यार विल बी टेक प्राइड, विल बी एबल टू टेक प्राइड अबाउट। सो इतना ही था दिमाग में, बाकी हमने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा कैसे होगा। इसके बाद स्कैम 1992 के बाद आपको क्या लगता है कि लोगों को आपको देखने का नजरिया लोगों का किस तरह से बदल गया है? क्या आपने कुछ महसूस किया ऐसा? जी जी जी, बहुत बहुत नजदीक से महसूस किया मैंने, बहुत कुछ चीजें बदली मेरे इर्द गिर्द। जहाँ तक ऑडियंस की बात करूँ तो ऑडियंस को मजा इस चीज का आया कि उनमें से ही कोई आदमी खड़ा होके यहाँ तक पहुंचा है, और ये कहानी भी उनके दिल को छू गई, तो उस हिसाब से मुझे ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। वो इस किरदार के सारे इमोशंस के साथ जुड़ पाए, वो इसे फील कर पाए, तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं जिस हिसाब से सोच के इसको परफॉर्म कर रहा था वो चीजें ट्रांसलेट हुई, वो लोगों के दिल तक पहुंची। दूसरा, एक एक्टर की दूसरी जो ऑडियंस होती है वो है मेकर्स, इंडस्ट्री के लोग, तो वहां से भी बहुत प्यार मिला। बहुत प्यार से, वेरी वार्म वेलकम दैट आई गॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी कहानियां मुझ तक पहुंच रही हैं, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड। देखा जाए तो आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है, जिस तरह से आप इसके पहले भी कह चुके हैं, काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे। गुजराती इंडस्ट्री में एक लंबा समय हो गया था, थिएटर की बात करें या फ़िल्मों की बात करें, उसके बाद मेन स्ट्रीम हिंदी फ़िल्मों की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, तो आपको लगता है एक बहुत लंबा समय लग गया, या जैसे-जैसे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली आपने काम किया? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबा समय निकल गया, बहुत ये थोड़ा जल्दी आता तो और मजा आता। पर अब जब सोचता हूँ तो ये भी लगता है कि सब कुछ अपने समय पे ही हुआ है। मुझे जिस हिसाब से काम मिलते गया, मैंने जितना भी काम किया, फिर चाहे वो स्टेज पे हो, फिर चाहे वो रीजनल सिनेमा में हो, जो भी मैंने काम किया उस सारे काम से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। तो शायद ये बात भी सही हो सकती है कि अगर स्कैम जैसी कोई बड़ी चीज मेरे पास पहले आ जाती तो शायद इतनी बड़ी ना भी बन पाती। तो अब तक मैंने जितना काम किया उसने मुझे तैयार किया है बतौर एक्टर, और तब जाके जब इतने सालों बाद एक ऐसा मौका मिलता है तो शायद मैं उस मौके को उतना न्याय दे पाया, मैं उसे उस हिसाब से परफॉर्म कर पाया। आपने आप अभी बॉलीवुड को बहुत ही करीब से देख रहे हैं, क्योंकि आप उसमें हिंदी फिल्मों की भी, आपको दूसरी फिल्मों की भी ऑफर है, और इसकी सफलता को भी आपने बहुत अच्छे से देखा है, परखा है। आपको क्या लगता है कि गुजराती इंडस्ट्री की बात करें तो क्यों आपको लगता है थोड़ी बैकवर्ड रह गई है, या क्या डिफरेंस है? आपने इतने सालों गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया है, और बॉलीवुड की बात करें, किस तरह का डिफरेंस है, और क्या आपको लगता है कि किस तरह के सुधार करने की जरूरत है उसमें? देखिए, जहां तक डिफरेंसेस की बात है तो एक रीजनल सिनेमा और एक मेन स्ट्रीम सिनेमा का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही। रीजनल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, लिमिटेड बजट्स होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री की हम बात करें तो वो सारी चीजें बहुत बड़ी है। यहाँ ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है, यहाँ के एवेन्यूज ज्यादा है, यहाँ बजट ज्यादा है, यहाँ के कैनवस बड़े हैं। और ये डिफरेंस शायद हर एक रीजनल इंडस्ट्री के साथ रहेगा। जहां तक गुजराती की बात है तो मुझे लगता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे वो बदलाव मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। हेलारो नाम की एक फिल्म आती है जिसे नेशनल अवार्ड मिलता है, उसने सारे जो स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी ब्रेक कर दी। आगे भी बहुत सारी ऐसी फिल्में अभी भी बन रही हैं। सो मुझे लगता है कि जैसे ही गुजराती सिनेमा अपने साहित्य से जुड़ना शुरू करेगा, ऐसी कहानियों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करेगा जो कि एक टिपिकल गुजराती फिल्म से अलग है, उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसमें सिर्फ ड्रामा नहीं है, उसमें सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं है, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। और गुजराती साहित्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, तो उससे जुड़कर कहानियां आना शुरू होंगी, वैसे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। शुरुआत में जिस तरह आपके ऑडिशंस रिजेक्ट होते थे, तो क्या आप डिप्रेस होते थे, लो फील करते थे? डिप्रेस तो नहीं होता था, पर हाँ कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार ऐसा क्या गलत हो रहा है जो काम नहीं हो रहा, कौन सी चीज सही नहीं हो रही। और कभी कभी आप सेल्फ डाउट करते हो, और ये फील्ड ऐसा है कि आपको सेल्फ डाउट करना भी चाहिए कुछ हद तक, सो दैट यू कैन इम्प्रूव।
तो ये सारी फील्ड मतलब, और ये बहुत ही मुझे लगता है इंसानी तौर पे शायद हर एक आदमी इससे गुजरता होगा कहीं ना कहीं। क्या ऐसा ऐसी क्या कमी लग रही थी उस समय आपको जिस पर आपने वर्कआउट किया? कैसे आप बाहर आए इसमें से? कमियों में ऐसा था कि मुझे एक तो ये प्रोसेस समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जो ऑडिशंस लेते भी हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें भी सब कुछ पता हो। उनके पास भी एक बहुत लिमिटेड ब्रीफ होती है, वो ब्रीफ हम तक पहुंचती है, हम उसमें से कुछ करके उनको दिखाते हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, पर क्योंकि वहां इतनी लंबी लाइन होती थी, इतने सारे लोग होते थे, तो आपको ज्यादा मौका भी नहीं मिलता था। तो धीरे 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 मैं समझता गया कि इसको किस हिसाब से मुझे उनसे बात करनी है, किस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, कि पहले उन्हें जो चाहिए वो दे दो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं उनको बता सकूं कि यार एक और ऑप्शन देता हूँ। एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड, सो आई आल्सो लर्नड अ लॉट ऑन द जॉब। जिस तरह से फिल्मों की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से अपने फिजिक पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। स्कैम में आपका जिस तरह का अपीयरेंस दिखा, उसके बाद आपने फिटनेस पर काफी मेहनत की, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखते थे। कैसा रहा वो दौर? वो दौर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं स्कैम के लिए मुझे कुछ 18-20 किलो वजन बढ़ाना था। वो मतलब पूरा जो फिजिकल फ्रेम था, वो स्क्वेरिश फिजिकल फ्रेम, एक बड़ा मुंह पे यहाँ पर भी उनको ज्यादा वजन दिखना चाहिए था। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगी पहले तो। और फिर जब स्कैम शूट खत्म हो गया मेरा, उसके बाद सीधा लॉकडाउन और ये सब अनाउंस हो गया था लास्ट ईयर, और आई वॉज वेरी वरीड अबाउट माई एक्स्ट्रा वेट, बिकॉज मैं कभी ऐसा था नहीं। आई वॉज ऑलवेज लीन एंड फिट। तो वही पहले 60 दिन मैंने इस्तेमाल किए लॉकडाउन के लास्ट ईयर के, और उस दौरान मैंने घर पे ही रह के एक्सरसाइज करनी थी, सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट था, खाने पे पूरा कंट्रोल किया और वर्कआउट किया। एंड आई गेस मुझे वो 60 दिन लगे एक्स्ट्रा 18 किलो निकालने में शरीर से। वजन बढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगी या घटाने में? बढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगी मुझे। बात मुझे कर बहुत मेहनत लगी वजन बढ़ाने। मतलब 9 महीने निकल गए मुझे वजन बढ़ाते बढ़ाते, 9-10 महीने। रहे हैं। सो आप काफी लकी है, आपका वजन जल्दी से बढ़ता नहीं है। हाँ, मतलब लोग सब यही कहते थे मुझे, पर मुझे डर यही लगता था कि यार एक बार बढ़ गया तो फिर पता नहीं मेरा बॉडी रिएक्ट कैसे करेगा, इसे निकालूंगा कैसे। जी, दंगल फिल्म के लिए आमिर खान ने भी कुछ इसी तरह का अपना आई जर्नी नो, आई चेंज नो। किया था। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो आप उससे किस तरह से रिलेट कर पाए? अरे बहुत रिलेट किया मैंने मैंने उनका भी वीडियो देखा था, वो फैट टू फिट वाला। फिर आई गेस ऋतिक रोशन ने भी ऐसा किया है। कई सारे हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये जर्नी की है। और बियॉन्ड अ पॉइंट एक्टर्स को ये करना ही पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, आवर जॉब। और वहीं से मोटिवेशन ले लेके मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था कि चलो अब यार खा लो, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ा लेते हैं। इंजीनियरिंग से एक्टिंग में आपने किस तरह से अपनी एंट्री की, और ये बदलाव क्यों? एक्चुअली ये बदलाव वैसे था नहीं, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर करता था। फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से थिएटर करता था। सो मेरे लिए थिएटर करना या एक्टिंग करना या अलग अलग किरदार क्रिएट करना, वो एक सेकंड नेचर बन गया। मुझे स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मतलब मुझे ऐसा कोई एक समय याद नहीं जब मैंने सोचा हो कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मुझे करना ही है। इंजीनियरिंग, ट्वेल्थ साइंस के बाद मैंने इंजीनियरिंग ली। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद मैंने बी प्रोडक्शन किया। सो वो भी एक पैशन के तौर पे था, मतलब मुझे मुझे अंदर से उसमें भी उतनी ही दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने वो किया। कोई कंपल्शन नहीं था घर से कि ये करना ही है तुम। तो अब मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पास दो चीजों में मेरी दिलचस्पी थी, मुझे दोनों चीजें करनी थी, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है। मुझे अलग अलग चीजों के बारे में पैशनेट फील होता है, और मुझे वो सारी चीजें करनी होती है। तो पता नहीं, मैं जब बॉम्बे आया 2004 में, तब से मैंने दिमाग में सोच लिया था कि मैं दोनों फील्ड में काम करूँ। और मैंने दोनों फील्ड में काम किया लगभग 16 साल वाह। सो या 12 साल एक्चुअली। एंड 2016 फाइनली आई left my full-fledged corporate engineering career, and then I plunged into acting. तब तक मैं थिएटर, गुजराती फिल्में, जॉब सब साथ में करता था। इस बीच में आपने ऑडिशंस के लिए कुछ ऐप भी बनाया? हाँ, तो जब ये जॉब और ये सब चल रहा था, तो होता था मेरा जॉब नवी मुंबई में था। वहां से अंधेरी आओ, और अंधेरी में जहाँ ऑडिशन चलते थे वहां पहुंचने में इतना टाइम लग जाता था मुझे ऑफिस के बाद।
कि मैंने बहुत सारे ऑडिशंस लॉस्ट किए, और तब ऐसा लगता था कि यार अगर ये ऑडिशन दे देता तो शायद काम मिल जाता। तो ये तब से दिमाग में था कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि यार आदमी कभी भी अपने हिसाब से टाइम से वो अगर पहुंच नहीं पा रहा है तो ऑडिशन चला जाए। स्पेशली यही थॉट दिमाग में था। हाँ, और तब तब से ये थॉट दिमाग में था 2015-16 से। करते 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 एक ऐप डेवलप करने का सोचा, तब मैं कर रहा था मेरे दोस्त के साथ, और हमने एक ऐप डेवलप किया है विच इज कॉल्ड castpro.live, जिसपे आप कहीं से भी लॉग इन अपना आईडी से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं एज एन एक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर्स अपनी रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, और आप कहीं से भी अपना ऑडिशन दे सकते वाओ। सो कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला इसके बाद? हाउ डू यू फील? हैं। वो आई फील गुड कि मैंने जो सोचा था, मैंने जिस चैलेंज को फेस किया था, उसी के लिए मैं कुछ बना पाया हूँ। जो कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद बॉम्बे ना भी आ सके, पर अपने घर से, अपनी जगह से, अपने शहर से भी ऑडिशन दे सकते हैं। एटलीस्ट एक ऑडिशन पहुंचेगा यहाँ। फिर जरूरत होगी तो उन्हें आना पड़ेगा, वो आएंगे। पर यहाँ रहना जरूरी नहीं है उसके लिए, आपका कहीं फिजिकली होना जरूरी नहीं है उसके लिए। ये मैं सोचता था, जो मैं कर पाया हूँ इसमें। मेरी अभी यही इच्छा है कि जितने भी ऐसे एक्टर्स हैं जो थिएटर करते हैं अपने अपने शहरों में, वो यहाँ तक पहुंच पाए, और वो इसका इस्तेमाल कर सके। और ऐसे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग कास्टिंग कर रहे हैं, वो ऐसे एक्टर्स तक पहुंच सके जो कि डिजर्विंग है। जी बिल्कुल। स्पेशली अभी बात करें आपकी आने वाली हिंदी फिल्मों की, अतिथि भूतो भव, वो भी आ रही है आपकी एक फिल्म। किस तरह से काम चल रहा है और हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? सो अभी मेरी दो दो फिल्में रिलीज होंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो फिल्म जो रावण लीला है, जो मैंने स्कैम के पहले शूट कर ली थी, दैट इज माई फर्स्ट फिल्म एज लीड। तो वो रिलीज होनी चाहिए, जैसे ही थोड़ा माहौल ठीक हो बाहर, रिलीज का सब डिस्कशन शुरू करेंगे ये लोग। अतिथि भूतो भव मैंने 4 महीने पहले ही शूट की। जैकी श्रॉफ है उसमें साथ में। जैकी श्रॉफ के साथ मैंने दूसरी बार काम किया, उनके साथ मैं पहले वेंटिलेटर में काम कर चुका हूँ, वेंटिलेटर गुजराती जो हमने की थी उसमें। राइट। सो दोनों फिल्में मजेदार हैं, अलग अलग किरदार हैं, मजा आएगा लोगों को होपफुली। गुजराती फिल्मों की बात करें तो आपको लगता है कि उसमें काम करने का, गुजराती कलाकारों के साथ काम करने का अपना एक अलग ही चार्म है? हाँ, वो मेरी मातृभाषा है, और मैं सालों से गुजराती में बहुत कुछ स्टेज पे भी काम कर चुका हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू गुजराती लिटरेचर ऑल्सो। सो आई फील एट होम, आई फील दैट कंफर्ट। गुजराती कौन सी ऐसी डिशेस है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और फिल्मों के सेट पर गुजराती डिशेस आप अपनी टीम के साथ कैसे एंजॉय करते हैं? हम लोग बहुत एंजॉय करते थे बिकॉज स्कैम के सेट पे तो बहुत सारे गुजराती थे, तो सबके घर से टिफिन आते थे, और हम लोग सब बहुत मजे लेके खाते थे। हम लंच टाइम हमारा सबका बहुत फेवरेट होता था। कुछ दिनों बाद तो ये डिस्कशन होना शुरू हो गया था कि आज तुम क्या लाने वाला, आज तुम क्या लाने वाला। सो आई मीन यू रिमेम्बर योर स्कूल डेज सडनली। जैसे हम रोज जो टिफिन बॉक्स डिस्कस करते थे। गुजराती डिशेस में मुझे हर प्रकार का गुजराती खाना पसंद है। पर क्योंकि मैं सूरत से हूँ, तो सारी सूरती डिशेस मुझे बहुत पसंद है। फिर चाहे वो खमण हो, चाहे ढोकला हो, चाहे समोसा हो, और हांडवो, थेपला, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद थेपला, ढोकड़ा, गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, सब कुछ। है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये सब खाने के बावजूद भी आपका वजन उतना नहीं बढ़ता है और क्योंकि फिटनेस। मैं सारी चीजें मॉडरेशन में खाता हूँ, मैं इतना ही खाता हूँ जितना मैं पचा सकूं। वेल, टीवी नाइन के दर्शकों को फिटनेस टिप्स आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और साथ साथ उनका वजन भी उतना ही बढ़ रहा है। तो आप क्या तो फिटनेस? इसके लिए मुझे लगता है कि एक चीज आप सब ट्राई करना, ये चीज मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम किया है इसने, कि आपको लगता है कि आप एक साथ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, तो पूरे दिन में 3-3, 4-4 मिनट या 5-5 मिनट के ब्रेक ले लें। जैसे लोग की सबको अलग अलग आदतें होती हैं। लोग फोन लेके बात करने की आदत होती है, किसी को बार बार इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया देखने की आदत होती है, वैसे ही सिर्फ 5-5 मिनट के ब्रेक की आदत डाल दो। राइट। जिस जैसे ही 5 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट आप पूरे बॉडी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, अपर बॉडी, मिड पार्ट एंड लोअर सेक्शन।
और 5-5 मिनट के 3 ब्रेक भी लोगे तो 15 मिनट की एक्सरसाइज हो जाएगी, एंड दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। लेकिन इसके साथ साथ डाइट के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? डाइट तो ऐसा है कि सब कुछ खाओ, पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ। बिल्कुल। और You don't avoid anything, don't deprive yourself of any taste, but eat in moderation, complete moderation. एब्सोल्युटली, लेकिन स्पेशली एक आखिरी सवाल, बरसात के समय में लोग तली हुई चीजें और गर्मा गर्म चाय कॉफी ये ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी एंजॉय कर ही सकते हो, पर बहुत कम, मतलब हफ्ते में 2 ही बार। राइट। बिकॉज आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपका शरीर आपसे कंटिन्यूस बात करता है, तो ये अगर हम समझ गए तो फिर काम हो जाएगा। जी। जी प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो मच।